Hello class 8, welcome back to our channel. Class 8, we are doing our chapter number 3 from our history book, that is Ruling the Countryside. And in the previous video we have covered the two settlements, two systems which were basically introduced by the Britishers to increase the revenue. Yes, so here the next one more system we'll learn in this video, that is the Monroe system. Here you can see the picture also. The picture is of Thomas Monroe, who was the governor of Madras that time. So Madras के governor थे Thomas Monroe, and as we already discussed, like the Mehelwadi system, जो कुछ places तक limit रहा, like the present उत्तर प्रदेश और the northern part of India, जिन्होंने इन settlements को face किया, इन systems को face किया. But here we'll learn about like the not only the northern part, even the south area where we are talking about Thomas Monroe, who was the governor of Madras. वहाँ पर भी कुछ settlement की बात start हुई, एक नए system की बात start हुई. So here the new system was devised and it was came to known as the Ryotwar or Ryotwari system. Or we can say the Monroe system, because the system was devised by Thomas Monroe. Yes, so Ryotwari was the name of the system, and this system was tried on a small scale. Initially जो स्टार्ट किया गया बेटा जी इस सिस्टम को बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया गया, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑन स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड. तो कुछ प्लेसेस पे किया गया था, एंड बेसिकली दोज वर द प्लेसेस विच वर कम्स अंडर द टीपू सुल्तान दैट टाइम. तो टीपू सुल्तान जब थर्ड वॉर अपना फोर्थ बैटल पूरी तरीके से हार गए थे, दैट टाइम वो जो लैंड कंपनी के अंडर आया था, उस लैंड पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे दिस सिस्टम, दैट इज द Ryotwari system, was introduced by the Captain Alexander. And after this experiment, the company and the Thomas Monroe, basically he developed this system to all over the South India. तो अभी तक साउथ इंडिया में पूरा तरह से स्प्रेड नहीं हुआ था, ओनली दोज एरियाज जो टीपू सुल्तान से रिलेटेड थे. बट आफ्टर सम टाइम रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स. सो आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट. यू ऑल्सो लर्न अबाउट द महलवाड़ी सेटलमेंट, जहाँ जमींदार्स एंड द हेडमैन बोथ द पर्सन वर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू. But here the Thomas Monroe thinking is कि ट्रेडिशनल ज़मींदार तो है नहीं, तो कुछ तो हमें एक solution निकालना पड़ेगा. Now they agreed, both of them argued to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generations. So in this system no mediator was there. They will directly contact with the cultivators. सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कल्टिवेटर्स को रियॉट्स कहा जाता था. दैट इज वाई द नेम ऑफ द सिस्टम इज रियॉटवारी सिस्टम. सो रियॉट्स बोलते थे. एंड सेकेंड थिंग, द सिस्टम में कोई भी मीडिएटर हमें विजिबल नहीं है. फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड. तो सेम जैसा हमने महलवाड़ी सेटलमेंट में देखा, इन दिस सिस्टम ऑल्सो फील्ड्स को केयरफुली मेजर किया गया, सर्वे किया गया, एंड रेवेन्यू असेस्ड किया गया कि आपको कितनी लैंड से कितना रेवेन्यू आप कलेक्ट कर सकते हैं. मुनरो का बिलीव था दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज एन पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियॉट्स अंडर देयर चेंज. उनको लगता था अगर हम रियॉट्स को अपने कंट्रोल में कर लेंगे देन आर रेवेन्यू विल डेफिनेटली इंक्रीज्ड. तो हमें उनको एक फादर फिगर की तरह प्रोटेक्ट करना है. उनको ये नहीं लगना चाहिए रियॉट्स को कि ये हमारी लैंड को कैप्चर करने आए हैं. तो ये बिलीफ के साथ थॉमस मुनरो ने अलेक्जेंडर रीड का रियॉटवारी सिस्टम ज़्यादा प्रमोट, ज़्यादा स्प्रेड किया इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया.
So all these were the settlements, but these settlements were not very successfully, we can say, because after some time the Britishers realized that not the revenue demand, क्योंकि revenue की demand बहुत ज़्यादा थी, and peasants were unable to pay the revenue. Riots fled the countryside, वो area ही छोड़ के चले गए. Villages became deserted in many regions. But here again कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है. So all was not well from the Britishers side. Again they are thinking again, because revenue तो collect करना ही है, कुछ और alternate सोचे गए. So yes, now they are thinking, now they are realized not only the yield revenue but the crops, कि कौन सी crops grow करानी चाहिए. This is also the important issue here. So the crops that Europe required, only those crops will be cultivated. तो ये डिसाइड किया गया जिस क्रॉप्स की यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड है, दैट वुड बी कल्टिवेटेड हियर ओनली. सो बाय द लेट 18th सेंचुरी कंपनी ने एक्सपैंड किया, कंपनी ट्राई टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. दीज टू वर द बेसिक क्रॉप्स जो उन्होंने, जिसको बिकॉज इनकी डिमांड कहाँ थी, ब्रिटेन में. सो ब्रिटिश परसुएडेड, या तो उन्हें कन्विंस किया इन्होंने अपने कल्टिवेटर्स को, या फिर फोर्सफुली भी कल्टिवेशन कराया गया, लाइक इन द पार्ट्स टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स व्हेन वी टॉक अबाउट इन बंगाल. सो फोर्सफुली जूट प्रोड्यूस करा रहे हैं असम में, शुगर केन. तो ये सब कल्टिवेटर्स को ज़बरदस्ती भी आपने फोर्स किया, बिकॉज नाउ दे रियलाइज्ड कि ओनली द सेटलमेंट्स वर नॉट वर्कड, दे हैड टू मूव, एंड उसके लिए क्रॉप्स के बारे में सोचना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी कि ओपियम एंड इंडिगो, दीज वर द टू क्रॉप्स जिसको वो एक्सपैंड कराना चाहते थे, और उनको मतलब था कि बंगाल में जूट, असम में टी, शुगर केन, व्हीट, इन सबको साइड पे किया जाए एंड उसकी जगह पर ओपियम एंड इंडिगो को ग्रो किया जाए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, डू यू रियली थिंक द ब्रिटिश यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स नाउ. जैसे उन्होंने रेवेन्यू के लिए वैरायटी ऑफ मेथड्स दे यूज्ड, सिमिलरली दे यूज्ड वैरायटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो. ओके, सो लेट्स सी क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं. सो हियर विल कंक्लूड दिस थिंग कि इंडिगो क्या है, ओपियम क्या है, एंड यूरोपियन कंट्रीज में इन दोनों क्रॉप्स की डिमांड क्यों है. So here you can see the figure 5 and figure 6 class 8. These are the images of cotton prints. Okay, ये fabric होता है, fabric कपड़ा, उसका prints are given. Figure 5 you can see this one. In the 20th century, kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. तो ये इंडिया का क्रिएशन है जो आंध्र प्रदेश में वीवर्स ने क्रिएट किया. ऑन द राइट साइड यू कैन सी द फ्लोरल कॉटन डिजाइन, छोटा छोटा कॉटन का प्रिंट दिख रहा है, एंड दिस डिजाइन बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय विलियम मॉरिस, हु वाज द फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th century ब्रिटेन. सो ये इंडिया का प्रिंट है, एंड हियर यू कैन सी द ब्रिटेन प्रिंट, नॉट इंडियन प्रिंट हियर. Yes, so there is one common thing. So common thing दोनों में क्या है, both the prints used rich blue color and the blue color is called indigo. So naturally cultivate किया जाता था indigo को, which was blue in color, and that color was really very demand थी उसकी आपकी यूरोपियन कंट्रीज में. सो ये जो आपके प्रिंट्स हैं वो प्लांट का नाम है इंडिगो, जिससे ग्रो करके वो कलर निकाला जाता है एंड उसके बाद उसको फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है. तो इट इज़ लाइक अ ब्लू डाई. ओके, लेकिन इंडिया में इसको कल्टिवेट किया जा रहा है, एंड इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. तो इंडिया में क्यों ग्रो किया जा रहा है, अगेन द पॉइंट इज
बिल्कुल इंडिया में ग्रो करने का रीज़न ये होगा कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी ऐसी हैं कि इंडिगो को हम ग्रो कर पाएंगे. ओके, सो दिस इज एनफ फॉर टुडेज क्लास. We'll move our next topic in the next video now. Thank you.